greedy approach. So first of all, let us understand what is this job sequencing with the deadline is. So the problem is there are n jobs to be processed on a machine. We are having n jobs and we are having a single machine and we want to process all the jobs onto that particular machine. Now each job I has a deadline di which is greater than equal 0 and a profit pi is greater than equal 0. What is this? We are having n jobs and we are having a machine, and out of these n jobs, each job is I, suppose that is the job I, having a deadline of di greater than equal 0 and a profit pi greater than equal 0. तो ये तो हर एक जॉब का डेडलाइन हुआ, प्रॉफिट हुआ, बट पीआई कब अर्न होगा? व्हेन द पर्टिकुलर जॉब इज कंप्लीटेड विद इन इट्स डेडलाइन. तो अगर कोई जॉब उस पर्टिकुलर डेडलाइन में कंप्लीट हो जाती है, देन वी विल बी एबल टू अर्न द प्रॉफिट टू दैट पर्टिकुलर जॉब, पीआई. ठीक है. So the job is completed if it is processed on a machine for unit time. Means every job needs a unit time to be required to process on that particular machine. अच्छा, ये तो मैंने क्लियर कर दिया. Only one machine is available for processing the job. Only one job is processed at a time on the machine. So a feasible solution is a subset of job J such that each job is completed by deadline. तो हमको इस तरह का subset find out करना है out of the set of this n job, like the maximum number of jobs that can be processed on that particular machine, so that we can achieve maximum profit. So it is a kind of the maximization problem, because we are just increasing the profit here, and in the coin change problem that was the minimization problem, because we want to find out the minimum number of coins. Okay, तो यहाँ हमको profit maximize करना है. Okay, so there can be several feasible solution, means several combination possible हैं जो task अपनी deadline में complete हो सके, but we want to find out that particular combination for which we will be able to get the maximum profit. So an optimal solution is a feasible solution with maximum profit value. ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ इसको. देखो, वी आर हैविंग n जॉब्स, हमारे पास n जॉब्स हैं, हमारे पास एक सिंगल मशीन है, हर एक जॉब की एक डेडलाइन है और हर एक जॉब का प्रॉफिट है. ठीक है, n नंबर ऑफ जॉब्स हैं, एक सिंगल मशीन है, एंड एवरी जॉब इज हैविंग अ डेडलाइन. मीन्स वो डेडलाइन तक वो कंप्लीट होना चाहिए. अब डेडलाइन क्या होगी मैं बताऊंगा आगे. और अगर वो जॉब उसकी डेडलाइन में कंप्लीट हो जाती है, देन देयर इज अ प्रॉफिट जो हमको मिल जाएगा वहाँ पे. तो पी आई इज अर्न इफ एंड ओनली इफ द जॉब इज कंप्लीटेड बाय डेडलाइन. ठीक है, तो जॉब इज कंप्लीटेड इफ इट इज प्रोसेस्ड ऑन अ मशीन फॉर यूनिट टाइम. एक तो ये है कि वो प्रॉफिट हमको जब मिलेगा जब जॉब अपनी डेडलाइन में कंप्लीट हो जाएगी. नेक्स्ट थिंग इज जॉब को उस मशीन पे कंप्लीट होने के लिए यूनिट टाइम की ही रिक्वायरमेंट है, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए. मीन्स वन यूनिट ऑफ टाइम. नेक्स्ट इज, अच्छा ये तो क्लियर कर दिया मैंने, हमारे पास एक ही मशीन है और एक ही जॉब एक बार में उस मशीन पर एग्जीक्यूट हो सकती है. ठीक है, सो अ फिजिबल सॉल्यूशन is a subset of the job J such that each job is completed by deadline. That will be the feasible solution. But out of this feasible solution हमको क्या find out करना है? हमको find out करना है optimal solution. Optimal solution with maximum profit value. So there can be several subsets of the jobs जो कि अपनी अपनी deadline में सबके सब जो task हैं वो complete हो जाएं. बट उसमें क्या होगा, ज़रूरी नहीं हमको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले. तो हमको वो वाला सबसेट फाइंड आउट करना है जिसमें हमको मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव हो. ठीक है, अब इसको हम देखते हैं द एल्गोरिथम फॉर दिस, एंड आफ्टर दैट वी विल गो फॉर द क्वेश्चन, जिससे आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा. सो दिस इज द एल्गोरिथम, जॉब सीक्वेंस डेडलाइन एल्गोरिथम. हियर इट इज a array. This array contain the deadline, this array contain the profit value, this array contain the job. So first of all, before moving forward, as we want to maximize the profit, तो हम क्या करेंगे? Simply sort the set of PI profit into non-increasing order of the profit value. Means जो profit value है हर एक जॉब का, तो हमको क्या करना है, उस सेट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है.
Okay, now the step second, add the next job I to the solution set if I can be completed by deadline. तो हमारा जो solution set है उसमें job जब आएगा जब वो अपनी पर्टिकुलर डेडलाइन में कंप्लीट हो सकती है। पर हम इसको चूज कैसे करेंगे, तो हम सबसे पहले चूज करेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट वाली जॉब को। इसके लिए चेक करेंगे, फिर इसके लिए चेक करेंगे, फिर इसके लिए चेक करेंगे। हम ये चेक करेंगे कि जो पी आई जॉब जे आई है उसका प्रॉफिट मैक्सिमम है, जैसे हमने अरेंज कर रखा है सीक्वेंस में, तो क्या वो पर्टिकुलर जॉब अपने डेडलाइन में कंप्लीट हो सकती है। अगर वो हो सकती है तो हम उसको हमारा जो सेट है और जो सॉल्यूशन सेट है उसमें उसको इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, और उसको कौन सा ब्लॉक असाइन करेंगे, असाइन आई टू टाइम स्लॉट r माइनस वन टू आर। अभी r माइनस वन टू आर क्या है मैं आपको एग्जाम्पल से क्लियर करूंगा। ठीक है, वहाँ क्लियर हो जाएगा। where r is the largest integer such that 1 less than equal r less than equal to li। मीन बेसिकली ये है हमारे पास, सपोज इस तरह के सेट्स हैं अलग अलग। सपोज इट इज 0 to 1, 1 to 2, 3, 4। तो 0 to 1 टाइम स्लॉट हो गया, 1 to 2 टाइम स्लॉट हो गया, 2 to 3 टाइम स्लॉट हो गया, 3 to 4 टाइम स्लॉट हो गया। वो जो जॉब है उसकी डेडलाइन है 2, मीन वो सेकेंड यूनिट ऑफ टाइम तक कंप्लीट की जा सकती है। तो हम क्या करेंगे उसको, जब जैसे या तो उसको यहाँ पे असाइन कर दें, एक ही टाइम स्लॉट रिक्वायर्ड है, या फिर उसको यहाँ असाइन कर दें। पर हम क्या करेंगे, विल असाइन दैट द लार्जेस्ट वन टाइम स्लॉट। अभी 2 तक हो सकती है तो हम क्या करेंगे, इसको ये नहीं करेंगे, ये वाला करेंगे। इसका रीज़न क्या है, इट मे बी पॉसिबल कि इसके बाद जो टास्क को हम देखें, सपोज ये तो इसकी डेडलाइन तो 2 है, इसकी डेडलाइन 1 हो। इसकी डेडलाइन 1 होगी तो ये इसका प्रॉफिट ज़्यादा है, ये मिस हो जाएगी यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पर J2 को असाइन कर दूँ तो J1 की डेडलाइन 1 तक ही थी, हम J1 को यहाँ नहीं दे सकते, तो हम क्या करेंगे, असाइन J2 हियर एंड असाइन J1 हियर। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे प्रॉफिट को मैक्सिमम कर रहे हैं। ठीक, एंड स्टॉप इफ ऑल द जॉब्स आर एग्जामिन, अदरवाइज गो टू द स्टेप 2। तो दिस इज द एल्गोरिथम, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी। तो एक तो यहाँ इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, सो इट विल टेक एन लॉग एन टाइम। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हियर यहाँ पे 2 लूप एग्जीक्यूट होंगे। एक तो एग्जीक्यूट होगा हर एक जॉब के लिए, और फिर उसमें हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर स्लॉट सर्च करेंगे उसके लिए। सो दे विल बी 2 लूप्स ओवर देयर दैट विल एग्जीक्यूट एन टाइम। तो द कॉम्प्लेक्सिटी विल बी O ऑफ n स्क्वायर। तो ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ n log n, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ n स्क्वायर। बट this is the maximum one, so this will be the asymptotic bound for this job sequencing algorithm, that is O of n square. Now these are some of the important points that we need to consider when we simply solve the problem, like the maximum number of jobs that can be completed। मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉब कितनी है जो हम टाइम पे कंप्लीट कर सकते हैं। ये क्योंकि हमको स्लॉट ड्रॉ करने होंगे, तो फॉर ड्राइंग दो स्लॉट वी नीड टू नो हाउ मेनी नंबर ऑफ जॉब कैन बी कंप्लीटेड विद इन द डेडलाइन। So it will be, there is a formula here, minimum of total number of job and the maximum deadline। मैक्सिमम डेडलाइन कहाँ से निकलेगा, किसी भी जॉब के लिए जो मैक्सिमम डेडलाइन है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ जॉब्स कितनी है और मैक्स डेडलाइन क्या है किसी भी जॉब की, तो उनका जो मिनिमम वैल्यू होगी दैट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉब दैट कैन बी कंप्लीटेड। अब ये लॉजिक क्या है ये मैं क्लियर करता हूँ विद एन एग्जाम्पल। तो हियर n इज द नंबर ऑफ जॉब एंड मैक्स डेडलाइन इक्वल मैक्स डेडलाइन अमॉन्ग n जॉब। So let's take an example here so that it will be clear to you all। The problem is we are having n jobs, it is a set of n jobs 1 2 3 n। यहाँ पे हमारे पास जॉब्स हैं 1 2 3 4 5। Each job I has a deadline di greater than 0। हम इनकी डेडलाइंस हैं हर एक जॉब की। तो जॉब होगी 1 2 3 4 5, ये इनकी डेडलाइंस होगी और ये इनके प्रॉफिट्स होंगे। तो द लॉजिक और कंस्टेंट इज वी नीड 1 यूनिट ऑफ टाइम। हमको 1 यूनिट ऑफ टाइम ही चाहिए हर एक जॉब को एग्जीक्यूट होने के लिए। तो वी नीड 1 यूनिट ऑफ टाइम टू प्रोसेस ईच जॉब एंड we can do at most 1 job at each time। So we can earn the profit pi if job I is completed by a deadline। अच्छा, ये जॉब्स हो गए डिफरेंट J1 J2 J3 J4 J5। ये प्रॉफिट वैल्यूज हो गई, ये डेडलाइंस हो गई। इफ वी आर एबल टू कंप्लीट दिस जॉब, रावत सर, तो
we are able to earn this particular profit only when we are able to complete the job 1 within the deadline 2. अभी डेडलाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे यहाँ पे? तो मैंने बताया था हमारे पे एक ही मशीन है, सपोज वी आर हैविंग अ सिंगल मशीन। ये हमारे पे टाइम स्लॉट्स हो गए स्टार्टिंग फ्रॉम 0, तो 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, ऐसे टाइम स्लॉट्स होंगे। यहाँ हमको कितने टाइम स्लॉट्स मिलेंगे? अब इस प्रॉब्लम के लिए अगर बात करें हम, तो हमारे पास यहाँ एन क्या है? इट इज़ 5, मीन टोटल नंबर ऑफ जॉब। अच्छा, और इसमें मैक्स डेडलाइन क्या है? मैक्स डेडलाइन है 3। तो मैंने ही बताया था कितनी मैक्सिमम जॉब कंप्लीट कर सकते हैं, दैट विल बी मिनिमम ऑफ टोटल नंबर ऑफ जॉब कॉमा मैक्स डेडलाइन। तो टोटल नंबर ऑफ जॉब्स हैं 5 एंड द मैक्स डेडलाइन इज 3, सो मीन्स वी विल हैव ओनली 3 टाइम स्लॉट्स ओवर देयर। तो 3 टाइम स्लॉट्स मीन 0 to 1, 1 to 2 और 2 to 3। और ये नहीं, विल हैव दीज 3 स्लॉट 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3। तो अब इन 3 टाइम स्लॉट में, अब 3 टाइम स्लॉट क्यों हुए कि भाई हर, जैसे इस जॉब की डेडलाइन 2 है, इस जॉब की डेडलाइन 2 है, इसकी जॉब डेडलाइन 1 है, इसकी 3 है, इसकी 3 है, सारी तो कंप्लीट नहीं हो सकती ना। जब इसकी डेडलाइन 3 है तो ये डेडलाइन 3 तक ही कंप्लीट हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। इसकी डेडलाइन 3 है तो ये भी डेडलाइन 3 तक कंप्लीट हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। और हम जब डेडलाइन ही 3 है मैक्सिमम, देन व्हाट विल हैपन? तो हमको इससे 10 स्लॉट मिलेंगे नहीं यहाँ पे, ठीक है। 5 जॉब तो हैं, पर किसी भी जॉब की जो डेडलाइन है मैक्सिमम वो 3 है। तो सपोज अगर इसकी डेडलाइन यहाँ 5 होती, देन इट विल बी पॉसिबल कि इसको हम आगे शेड्यूल कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ से तो ये क्लियर हुआ, लाइक फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम द टोटल नंबर ऑफ जॉब्स आर 5 एंड द मैक्स डेडलाइन इज 3, उनका मिनिमम वैल्यू हो गया 3, सो विल हैविंग 3 टाइम स्लॉट। अब हमको 3 टाइम स्लॉट में इन जॉब्स को इस तरह शेड्यूल करना है कि हमको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। तो हमने क्या किया था? वी हैव अरेंज ऑल द जॉब्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉफिट वैल्यू। सो दिस इज द ग्रीडी पार्ट हियर, कि हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले चेक कर रहे हैं उस जॉब को जिसका प्रॉफिट मैक्सिमम है। जॉब 1 का प्रॉफिट यहाँ 20 है, जॉब 2 का 15 है, जॉब 3 का 10 है, जॉब 4 का 5 है, जॉब 5 का 1 है। तो अगर मैं इस जॉब को ले लेता हूँ यहाँ पे, और ये जॉब इसकी डेडलाइन 2 में कंप्लीट हो जाती है, तो हमको क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट गेन हो जाएगा, 20 प्रॉफिट गेन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ एक और थी इंपॉर्टेंट, जो एल्गोरिथम में थी, कि हमको अगर किसी जॉब को सेलेक्ट सपोज हमने कर लिया, तो ये टाइम स्लॉट में से उसको कौन सा टाइम स्लॉट असाइन करना है? जैसे इसकी डेडलाइन है 2, तो उसको असाइन करना है मैक्सिमम लार्जेस्ट वाला टाइम स्लॉट जो भी फ्री है। तो ये जॉब 1 हो गई, ठीक है। इस जॉब 1 को हम कौन सा टाइम स्लॉट दे सकते हैं? डेडलाइन 2 है इसकी, तो या तो 0 to 1 दे सकते हैं या 1 to 2 दे सकते हैं। एक टाइम स्लॉट चाहिए, डेडलाइन इसकी 2 है, तो 2 से पहले वाला जो भी टाइम स्लॉट है लार्जेस्ट वाला वो असाइन करेंगे, ठीक है। तो जॉब 1 की डेडलाइन इज 2, सो विल असाइन इट दिस टाइम स्लॉट, इट इज फॉर J1। सपोज इट इज J1, J2, J3, J4, J5, ठीक है। तो इट विल बी J1। अच्छा, ये कंप्लीट हो गई। लेट्स मूव टू नेक्स्ट जॉब। इसका डेडलाइन भी 2 है और प्रॉफिट 15 है। अच्छा, हमें प्रॉफिट ऐड करते जाते हैं। प्रॉफिट हमको मिल गया 20 का, और हमारा जो जॉब का सेट हो गया वो उसमें आगे हमारे पास J1, ठीक, और ये प्रॉफिट हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट जॉब J2। उसका प्रॉफिट है 15 और इसकी डेडलाइन है 2। डेडलाइन 2 मतलब 2 डेडलाइन में से कोई सा भी स्लॉट उसको मिल जाए। तो यू कैन सी हियर दिस स्लॉट इज एम्प्टी, ये तो फुल हो गया। तो विल असाइन हियर इट फॉर J2, सो विल हैव हियर J2, और प्रॉफिट कितना आ जाएगा इसका? 15 आ जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट जॉब J3। अच्छा, J3 का प्रॉफिट 10 है। व्हाट इज द डेडलाइन? 1। तो डेडलाइन 1 है, तो क्या हमको, हमारे पास स्लॉट खाली है? नो, ये स्लॉट तो फिल है, तो वी कैन नॉट सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर जॉब। नेक्स्ट लेट मूव टू द थर्ड जॉब, सॉरी फोर्थ जॉब J4। इसका प्रॉफिट है 5 और इसकी डेडलाइन क्या है? 3। तो मीन्स वी कैन, अब चेक करो, असाइन कर सकते हैं क्या? 3 डेडलाइन तक कंप्लीट हो सकती है। तो 0 to 1 फिल है, 1 to 2 फिल है, 2 to 3 एम्प्टी है, और डेडलाइन भी 3 है। तो वी कैन असाइन हियर J4, so it will be J4, so we will have J4 here and profit value of this will be 5, ठीक है। अब सारे स्लॉट फिल हो गए, टास्क ओवर हो गई। सो वी आर हैविंग दिस सेट ऑफ जॉब J1, J2, J4 and this will be the maximum profit, like the maximum profit will be 40, maximum profit will be 40।
So hope it is clear. Any doubt to anybody in this? Then we will move to some more numericals. ये लॉजिक क्लियर हुआ कैसे हमने किया यहाँ पे? Yes, sir. Okay. Okay, so this is the explanation for this. मैं वापस से क्लियर कर देता हूँ इसको. We were having this set of jobs. These are the profit values. These are the deadlines of the job. So first of all, arrange all the jobs in decreasing order of their profit. तो हमने इनको arrange किया decreasing order of their profit. Now just find out how many maximum number of jobs that can be completed. बन गया हमारे पास slot कितने हैं? It will be equal minimum of number of jobs comma max deadline. The number of jobs है 5 और max deadline है 3. So what is the minimum value? That is 3. Means we will have 3 time slot 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3. Okay. Now starting from the first job, it is J1. So the profit is 20 and deadline is 2. And दोनों deadline यहाँ पे free हैं अभी. तो हम क्या कर सकते हैं? We can assign this one, this deadline J1. Largest वाला deadline assign करना है. और इसको हम हमारे सेट में ऐड कर लेंगे. मीन इट इज इंक्लूडेड. नेक्स्ट मूव टू सेकंड जॉब J2. इसका डेडलाइन है 2. ये तो फेल हो गया. वी कैन असाइन इट हियर. ये भी इंक्लूड कर लिया हमने. नेक्स्ट मूव टू J3. इसका डेडलाइन है 1 और हमारे पास स्लॉट खाली नहीं है कोई भी. 1 वाला तो खाली नहीं है तो पहले से फिल है. तो वी कैन नॉट इंक्लूड दिस वन. नेक्स्ट जॉब इज J4. इट्स डेडलाइन इज 3. तो 0 to 1 फिल है, 1 to 2 फिल है, 2 to 3 इट इज एम्प्टी. We can assign here J4. So J4 is included और टाइम स्लॉट सारे ओवर हो गए. ठीक है. So we are having in our set J1, J2, J4. The profit will be 20, 15, 5. That is total 40. ठीक. So now let's move to यही example है. Now let's move to another example here. These are the number of jobs J1, J2, J3, J4. These are the profit values. These are the deadline. तो फर्स्ट टास्क इज अरेंज जॉब्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉफिट. तो हमने जॉब्स को इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर प्रॉफिट अरेंज किया. तो इसका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा J1 का, देन है J4 का, देन है J3 का और देन है J2 का. तो 100, 27, 15, 10. तो दिस इज द प्रॉफिट एंड दीज आर द डेडलाइन. तो ये डेडलाइन भी रेस्पेक्टिवली हमने यहाँ पे कर दिया. नाउ नंबर ऑफ जॉब्स दैट कैन बी कंप्लीटेड और द नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने होंगे हमारे पास? दैट इज मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ जॉब. नंबर ऑफ जॉब है 4 यहाँ पे और मैक्स डेडलाइन है 2. हमारे को कितने स्लॉट मिल सकते हैं? बेसिकली 2, 0 to 1, 1 to 2. अब इनको अरेंज करते हैं प्रॉपर उसमें. हमारे पास 2 स्लॉट हो गए. एक मिनट. हमारे पास 2 स्लॉट हो गए यहाँ पे. मैं यहीं पर ड्रॉ कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट फिगर पर न जाएँ. 0 to 1 और 1 to 2. तो देखो मैक्स फर्स्ट जॉब से स्टार्ट करते हैं. प्रॉफिट है इसका 100 और डेडलाइन है 2. तो डेडलाइन 2 है मीन्स वी विल पुट इट हियर J1 मैक्स वाले जो हमारे पास स्लॉट है. देन नेक्स्ट जॉब तो ये इंक्लूड हो गया J4. इसका डेडलाइन है 1 और ये हमारे पास फर्स्ट स्लॉट एम्प्टी है. सो वील असाइन इट हियर लाइक इट विल बी J4 और दोनों स्लॉट कंप्लीट हो गए. तो सॉल्यूशन इज J1, J4 विद द प्रॉफिट वैल्यू 127. ठीक है. दिस इज द सॉल्यूशन 127. Now let's move to another problem. Suppose we are having these 7 number of jobs here and we have already arranged them all in the decreasing order of their profit. These are the deadlines. So first of all find out the number of slots or the maximum number of jobs that can be completed. It will be minimum of number of jobs. Number of jobs है 7 और max deadline हमारे पास है 4. 7,4 means 4. Minimum final किया यहाँ पे हमने. So we are having 4 slots here. तो जो हमारे पास 4 स्लॉट्स हैं. अब स्टार्ट करते हैं जॉब 1 से. इसकी डेडलाइन है 2. इसे कहाँ असाइन करेंगे? सेकंड स्लॉट ये वाला. ये इंक्लूड कर लिया हमने. नेक्स्ट जॉब है J2. इसका स्लॉट है 4. इसे कहाँ असाइन करेंगे? लास्ट वाला स्लॉट 4. नेक्स्ट जॉब है J3. इसका स्लॉट कौन सा? सॉरी इसकी डेडलाइन है 3. इसको अलाउट करेंगे थर्ड वाला. तो यहाँ तो मिल रहे इसी तरह से सिक्वेंस में मिल रहे हैं. J4 का स्लॉट है 1. ये असाइन करेंगे यहाँ पे फर्स्ट स्लॉट में. So this will be a sequence of the job J4, J1, J3, J2 and these are the profit values. Let's take another problem. We are having the jobs J1 to J5. These are the profit values. These are the deadline.
अब डायरेक्टली कर लेते हैं यहाँ पे, मैक्सिमम कितने स्लॉट हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मिनिमम ऑफ टोटल नंबर ऑफ जॉब दैट इज 5 कॉमा मैक्स डेडलाइन दैट इज 4. तो दैट इज 4 मीन्स वी विल हैव 4 स्लॉट, 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4. अच्छा, नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द जॉब विद द मैक्स प्रॉफिट वैल्यू, ये हमारे पास जॉब है मैक्स प्रॉफिट वैल्यू, इन्हें अरेंज नहीं किया इनको हमने, इसको मैं चलो उसको सॉल्व, ये हटेगा, सीक्वेंस देख लेते हैं पहले, J4, J5, J1, J3, J2. तो J4 का मैक्सिमम प्रॉफिट 90 और डेडलाइन 2, इट कैन बी असाइंड हियर इन द सेकंड स्लॉट J4. फिर देखो दूसरा मैक्स प्रॉफिट वाली जॉब है J5, इसका प्रॉफिट है 60 और डेडलाइन 3, इसको हम यहाँ पे दे सकते हैं J5 को. नेक्स्ट प्रॉफिट वाली है J1, प्रॉफिट है 50, डेडलाइन है 4, 4 मीन ये स्लॉट खाली है, यहाँ इसको पुट कर सकते हैं. और नेक्स्ट वाली हमारे पास है इट इज J3, इसका डेडलाइन है 1, तो 1 देखें 1 खाली है हमारे पास, तो वी कैन पुट सिंपली J3 हियर. So this will be the sequence of this particular job, just sequence. एक और प्रॉब्लम और मैं काम करता हूँ, आपको मैं सेपरेट एक एग्जांपल ले लेता हूँ. सपोज वी आर हैविंग द jobs like the job profit deadline. I'm arranging them like this, jobs and profit or deadline. Okay. Okay, so we are having J1, J2, J3, J4, J5, J6. इसका प्रॉफिट है, सपोज मैं इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता हूँ पहले से ही, या नहीं डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं करते. इसका प्रॉफिट है सपोज 50, इसका प्रॉफिट है 100, इसका प्रॉफिट है 20, इसका है 200, इसका है 10, इसका है सपोज 300. ठीक है, इसकी डेडलाइन है सपोज 2, इसकी डेडलाइन है 1, इसकी है सपोज 2, इसकी है सपोज 3, इसकी है सपोज 4, इसकी है अगेन 3. ठीक है, तो द सॉल्यूशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी सिंपली अरेंज देम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द प्रॉफिट वैल्यू. तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे, इनको लिख लेता हूँ जॉब्स. नाउ वी आर अरेंज इन decreasing order of profit. So we will have jobs and profit and deadline. ठीक है, तो जॉब्स में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वाली कौन सी है, J6. तो J6 प्रॉफिट है 300 और डेडलाइन है 3. देन है J4, प्रॉफिट है 200 और डेडलाइन है अगेन 3. देन इसके बाद है J2, प्रॉफिट है 100 और डेडलाइन है 1. देन इसके बाद है J1, प्रॉफिट है 50 और डेडलाइन है 2. ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. देन है J3, प्रॉफिट है 20, डेडलाइन 2. देन है J5, है ना, प्रॉफिट है 10 और डेडलाइन है 4. ये तो हमने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है. नाउ लेट्स फाइंड आउट कितनी जॉब हम कंप्लीट कर सकते हैं. तो ये हो जाएगा minimum of total number of jobs we are having 6 or max deadline that is 4, so it will be 4. So means we will have 4 time slots here. तो मैं टाइम स्लॉट ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4. so it is 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3 और 3 to 4. ठीक है, आप क्या करना है इसमें से, एज अ ग्रीडी अप्रोच सेलेक्ट अ जॉब विद मैक्स डेडलाइन, दिस वन, सॉरी मैक्स प्रॉफिट. तो इसका प्रॉफिट है 300 और इसकी जो डेडलाइन है 3, मीन्स वी कैन पुट इट हियर. तो जब भी किसी जॉब को स्लॉट अलॉट करो तो मैक्सिमम वाला करो जो अवेलेबल है. ठीक है, हमने इसको यहाँ असाइन किया, इसकी जगह यहाँ लिखता हूँ J6. ठीक, तो ये जॉब इंक्लूड हो गया. नेक्स्ट वन इज J4 और प्रॉफिट है 200 और डेडलाइन है 3. तो डेडलाइन 3 है, मीन्स इन फर्स्ट 3 स्लॉट में से दे सकते हैं. तो ये तो फिल हो गया, तो हम इसको यहाँ असाइन कर सकते हैं. ये हो गया J4, ये भी इंक्लूड हो गया. नेक्स्ट वन है J2. J2 का डेडलाइन है 1, मीन्स इसको हम
यहाँ पर ही असाइन कर सकते हैं, और अगर ये खाली नहीं होता तो इसको हम प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो J2 विल कम हियर, तो वी हैव असाइंड J2। ठीक है, नेक्स्ट इज J1। अच्छा देखो, अब J1 का प्रॉफिट है 50, डेडलाइन है 2, बट कोई स्लॉट खाली नहीं है यहाँ, सो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड। J3 का प्रॉफिट है 20, बट डेडलाइन है 2, ये भी खाली नहीं है, सो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड। J5 का प्रॉफिट 10 है और इसकी डेडलाइन है 4, मीन्स फोर्थ डेडलाइन तक कोई सा भी स्लॉट असाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट 3 स्लॉट तो फिल हैं, वी विल असाइन इट द लास्ट वन J5। ओके, तो देखो एक ही टाइम स्लॉट मिल सकता है, विद इन द डेडलाइन मिल सकता है, विद इन द डेडलाइन वो कंप्लीट हो रही है तो ही प्रॉफिट अर्न होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हमारे को यहाँ पे द सीक्वेंस इज J6, J4, J2, J5 एंड द प्रॉफिट विल बी 3 + 2 + 1, इट इज 6 + 10। तो प्रॉफिट इज total profit, it is 610। So hope it is clear to all.